So now we will continue with the next part of photosynthesis, factors affecting on photosynthesis. Factors affecting on photosynthesis. Factors affecting on photosynthesis. फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फोटोसिंथेसिस में affecting on photosynthesis. So there are two types of factors. One is internal factor or plant factor. Internal और plant factor. इसमें क्या है देखिए, नंबर वन इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. सो इट इज नथिंग बट डीएनए. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब प्री प्लान्ड जेनेटिक मटेरियल, राइट. ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है वो प्री प्लान्ड होता है. And if plant is C4, if plant is C3, they have different rates of photosynthesis because of their genetic material. Correct? Sugar cane do more photosynthesis. Mango plant also do photosynthesis but comparatively less photosynthesis. ये कौन डिसाइड कर रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए. ठीक है. इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग ऑन फोटोसिंथेसिस. सेकेंड है इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन. इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर ऑफ लीव्स है, एज ऑफ प्लांट है, एज ऑफ प्लांट है. फिफ्थ ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स है, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल है. सो दीज आर ऑल इंटरनल फैक्टर और प्लांट फैक्टर बोल सकते हैं. अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल. इफ प्लांट इज हैविंग मोर CO2 concentration inside, more CO2 concentration inside the cell, then they will do more photosynthesis. Even number of leaves, arrangement of leaves. Orientation of leaves का मतलब क्या होता है? Arrangement of leaves, that is also deciding the rate of photosynthesis. तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं. एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं? एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट आएगा. देखिए लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है. तो ये इंटरनल फैक्टर्स थे, ये एक्सटर्नल फैक्टर. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट external factor. And mostly student they ask me doubt in this line: genetic predisposition, internal CO2 concentration. CO2 दोनों तरफ आ रहा है. देखिए इंटरनल फैक्टर में भी आ रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर में भी आ रहा है. ठीक है. मोस्टली स्टूडेंट दे आस्क मी दिस genetic predisposition. Okay, so even plants have different qualities, maybe of same species. Some are having more productivity, some are having
लेस प्रोडक्टिविटी, दैट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. डीएनए डिसाइड करता है कितना फोटोसिंथेसिस करना है. Some are highly productive, some are low productive. That is all because of genetic material, and it is pre-planned. If parents are superior, their offsprings are also more superior in hybridization experiments. Okay. So here, out of these 4 external factor, which one is a rarely limiting factor? Rarely limiting factor कौन सा है? लाइट इज रेयरली लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि लाइट तो हर दिन मिलती ही है. रेयरली क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द रेयर लिमिटिंग फैक्टर, व्हाट इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर? रेयर लिमिटिंग फैक्टर इज लाइट. रेयर लिमिटिंग फैक्टर बोल सकता हूं मैं, क्योंकि हर दिन लाइट तो मिलती ही है. और CO2 को मैं बोलूंगा मेजर लिमिटिंग फैक्टर बोलूंगा. Many of the times CO2 concentration is acting as limiting factor. So now you may ask question, what is mean by limiting factor? Limiting factor क्या है? So here comes a law called Blackman's law of limiting factor. Blackman's law of limiting factor बोलेंगे इसको. नेम ऑफ द साइंटिस्ट ब्लैकमैन, इसलिए ब्लैकमैन्स लॉ बोले हैं इसको. ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन द ईयर 1905. एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, स्टेटमेंट क्या है? एनी बायोकेमिकल प्रोसेस इज कंडीशनड, any biochemical process is conditioned as to its rapidity by a number of factors, then the rate of the process depends on minimum available factor called limiting factor. क्या है, जरा स्टेटमेंट समझने की कोशिश करेंगे. एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, कौन सा भी प्रोसेस हो, फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, एनी बायोकेमिकल प्रोसेस इज कंडीशनड by a number of factors to judge whether the process occur very fast or the process occur very slow. We want to know whether photosynthesis occur very fast or photosynthesis occur very slow. It depends on number of factors. बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड है. लाइट पे है, कार्बन डाइऑक्साइड पे है, वाटर पे है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड है. Then the rate of the process depends on मिनिमम अवेलेबल फैक्टर. फोटोसिंथेसिस को लाइट चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सब चाहिए. अब फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड होगा? मिनिमम अवेलेबल फैक्टर पे डिपेंड होगा. ये 4 फैक्टर में से सबसे जो कम मिल रहा होगा, दैट इज द लिमिटिंग फैक्टर, एंड दैट विल डिसाइड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, जैसे आपकी स्टडीज हैं, the rate of your studies depends upon many factors, है ना, so many factors, and the rate of your study depend on limiting factor. जो आपको नहीं मिल रहा है उसके बारे में सोचते हैं, है ना. स्टडीज क्यों नहीं हो रहे आपके, पेरेंट्स पूछे why you are getting so less marks, तो you will answer if I get that thing I will get good score, है ना. क्यों नहीं आए मार्क्स? मेरे पास पेन नहीं था, मेरे पास पेंसिल नहीं था, है ना. ऐसे so many reasons we have made in school days, so many factors के ऊपर, और मिनिमम अवेलेबल फैक्टर उसी के ऊपर हम बोलते रहते हैं. यही है ब्लैकमैन्स लॉ. ठीक है. जैसे मानसून चल रहा है, मानसून सीजन में लगातार बारिश हो रही है
और वाटर तो बहुत ज्यादा है बट सनलाइट बहुत कम है. So that means in monsoon season light is limiting factor. In summer season water is limiting factor. So depending on season also limiting factor changes. अब यहां पर लाइट से रिलेटेड जो है एक ग्राफ दिया हुआ है. लाइट से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है. सपोज इफ आई ड्रॉ ए ग्राफ लाइक दिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, यहां पर लेंगे हम लाइट इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पे लाइट इंटेंसिटी ले लेंगे और वाई एक्सिस पे ले लेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दैट मीन्स मैं एक ग्राफ बना रहा हूं जिसमें इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी देखना चाह रहा हूं ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, photosynthesis also initially increases. लाइट जैसे जैसे बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा ना, up to a point and then become constant. So question is, why photosynthesis become constant after certain light intensity? Because other factors are becoming, यहां तो लाइट अनलिमिटेड है. एक्स एक्सिस में मैं क्या कर रहा हूं, लाइट बढ़ाते जा रहा हूं, बट आई एम नॉट इंक्रीजिंग CO2, आई एम नॉट इंक्रीजिंग वाटर, जस्ट आई एम इंक्रीजिंग ओनली लाइट इज इंक्रीजिंग. तो फोटोसिंथेसिस के लिए चारों फैक्टर चाहिए, एक लाइट से नहीं चलेगा काम. सो इन दिस ग्राफ सपोज दिस इज ए पार्ट, लेबल्ड एज ए पार्ट, दिस इज ए, एंड दिस वन, ये पॉइंट है बी पॉइंट. देखिए मैं पूरा ऊपर नहीं लिख रहा हूं, बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और ये रहा डी पॉइंट और ये रहा ई पॉइंट. लेट्स एक्सप्लेन व्हाट इज दिस ए बी सी डी ई. व्हाट इज ए? ए मीन्स लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर. लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर. मिनिमम है ना, लाइट कम है. ए में लाइट कम है, ए में लाइट कम है. बी में लाइट इज पार्शियली लिमिटिंग फैक्टर, पार्शियली लिमिटिंग फैक्टर. इसलिए मैं बोला बी पूरा ऊपर मत लिखो, पूरा ऊपर मत लिखो, जरा बी नीचे ही लिखना है, ठीक है. एंड सी means other factors are becoming limiting factor. Okay, C का मतलब है rate of photosynthesis become constant. क्यों constant हो गया? Rate of photosynthesis become constant because other factors are limiting. And what is a D? What is D point? देखो D point वो एरिया है जहां पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसके बाद इंक्रीज नहीं हो रहा फोटोसिंथेसिस. इंक्रीज हुआ क्या बाद में? D पॉइंट के बाद. तो मैं D को बोलूंगा लाइट सैचुरेशन पॉइंट. D का मतलब है द लाइट अप टू विच फोटोसिंथेसिस कैन इंक्रीज. द लाइट इंटेंसिटी अप टू विच फोटोसिंथेसिस कैन इंक्रीज इज कॉल्ड D पॉइंट. समझे? यहां तक फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हुआ, ये लाइट तक इंक्रीज हुआ, D लाइट तक. उसके बाद मैं लाइट बढ़ाऊंगा तो भी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं हुआ, इसलिए मैं लाइट सैचुरेशन पॉइंट बोला हूं. लाइट सैचुरेशन पॉइंट. ओके, व्हाट इज ई पॉइंट? व्हाट इज ई? ई का मतलब है मैक्सिमम
रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके ऊपर इंक्रीज ही नहीं हुआ। फिर देखो ये मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाई एक्सिस क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये पॉइंट। अदर जो लाइट के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, यस्टरडे वी हैव सीन light quality is required, light intensity is required, light duration is not so important, I told है ना। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अगर इन इंटरमीडिएट लाइट बोला, 10% फुल सनलाइट बोला मैं, कितना 10% फुल सनलाइट बोला। ये सारे पॉइंट नोट्स में है ना, यस। एंड रिमेंबर हियर टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, heliophytes, Ceophytes. Heliophytes means the plants growing in direct sunlight. Plants growing in डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं हीलियोफाइट्स, डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो होने वाले प्लांट्स। और सीओफाइट्स क्या होते हैं, शेड लविंग प्लांट्स, शेड में रहते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रह सकते। तो ये था लाइट के बारे में, और जो भी इंफॉर्मेशन है लाइट के, अदर इंफॉर्मेशन, विच क्वालिटी ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये सारी चीजें हम कल के नोट्स में लिख चुके हैं। ओके, अब यहां पर जो है लाइट के बाद हम जो है जा रहे हैं CO2 की तरफ। CO2 से क्या क्या याद रखेंगे, नॉर्मल CO2 कॉन्सेंट्रेशन कितना है, व्हाट इज द नॉर्मल CO2 कॉन्सेंट्रेशन, 0.03, नॉर्मल CO2 कॉन्सेंट्रेशन 0.03 याद रखेंगे। नॉर्मल CO2 0.03 to 0.04, increase in CO2 up to 0.05% can increase photosynthesis, up to 0.05. C3 plants respond to CO2 concentration at high CO2, that is 450 microliter per liter of air, जबकि C4 plant respond to CO2 concentration even at low CO2, that is 360 microliter per liter of air। देखिए ये लाइन नहीं समझने आ रही है ना, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। CO2 नॉर्मल CO2 कॉन्सेंट्रेशन कितना है एयर में, 0.03 टू 0.04, बहुत कम है परसेंट। और अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा अप टू 0.05, फोटोसिंथेसिस कैन इंक्रीज। इफ इट बिकम्स अबव 0.05, अगर CO2 0.05% हो गया या 1% हो गया तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया बात। एंड C3 प्लांट्स आर रेस्पॉन्डिंग टू CO2 कॉन्सेंट्रेशन एट हाई CO2, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर ऑफ एयर। जो पर लीटर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें CO2 अगर 450 माइक्रोलीटर रहा, then only C3 plant do photosynthesis, otherwise they do waste process, photo respiration। जबकि C4 plants they do photosynthesis
and they respond CO2 concentration even at low CO2. मतलब लो CO2 भी रहा तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो. So who is best? C4 is best, and C4 are the perfect 360 marks. C4 plants are perfect 360 marks in bio. और C3 प्लांट क्या है 450 ओवरऑल. तो देखो हो गया ना 450. तो ऐसा है C3 और C4 का. क्लियर है? तो अब क्या करना चाहिए हम C3 प्लांट को? C3 plants like tomatoes, bell pepper. टोमेटोज और बेल पेपर जो है C3 प्लांट होते हैं. C3 प्लांट लाइक टोमेटोज, बेल पेपर आर केप्ट इन, कहां रखना बोला था मैं? ग्रीन हाउसेस. आर केप्ट इन ग्रीन हाउसेस टू एनहांस फोटोसिंथेसिस. टू एनहांस फोटोसिंथेसिस अगर बढ़ाना है C3 प्लांट के अंदर तो कीप दोस प्लांट इन ग्रीन हाउसेस. सिंपल था कॉन्सेप्ट CO2 का, बहुत ही सिंपल था. मेजर लिमिटिंग फैक्टर है CO2. वन ऑफ द रॉ मटेरियल है CO2. विदाउट CO2 देयर इज नो फोटोसिंथेसिस. राइट? तो ये परसेंटेज याद रखेंगे, ये वैल्यूज याद रखेंगे. देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है ये. C3 प्लांट रेस्पॉन्ड टू हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन और C4 प्लांट रेस्पॉन्ड टू लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन. अगर CO2 लो भी है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर रहे हो. समझ में आ गया? C3 प्लांट जो है एग्जाम बिल्कुल बिल्कुल करीब में है तब पढ़ना शुरू करते हैं. दे आर लाइक स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग ओनली व्हेन एग्जाम्स आर वेरी क्लोज, ओनली वन डे रिमेंड. प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चाहिए प्रेशर, तभी पढ़ेंगे C3 वाले. C4 क्या है? प्रेशर रो भी रहा तो पढ़ लेते हो, 360 पे भी काम चला लेते हो. समझ में आ गया? ओके चलो अब टेम्परेचर की बात करेंगे. टेम्परेचर टेम्परेचर, whether light reaction is more temperature dependent or dark reaction is more temperature dependent. Dark reaction is more temperature dependent. आप बोलेंगे वो क्यों? Because dark reaction is enzymatic process. कौन सा प्रोसेस है? एंजाइमेटिक प्रोसेस है. एंड देन एंजाइम्स रिक्वायर वाटर, एंजाइम्स रिक्वायर वाटर, एंजाइम्स रिक्वायर टेम्परेचर, है ना? अगर टेम्परेचर बहुत ही लो है तो एंजाइम बिकम इनएक्टिव. यूजुअली कैटलिस्ट जो होते हैं हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, पता है ना? तो हमारे जो एंजाइम्स हैं वो बेस्ट वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर पे, 37 डिग्री सेल्सियस लाइक दैट. So if temperature decreases, photosynthesis also decreases. If temperature decrease, photosynthesis decrease. Temperature decrease, photosynthesis decrease. तो ये था टेम्परेचर का इफेक्ट. वाटर के बारे में और टेम्परेचर दोनों के लिए अलग अलग लिखाया हूं मैं. C3 प्लांट टेम्परेचर ऑप्टिमम इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस. C4 प्लांट के 30 to 40 डिग्री सेल्सियस लिखे सो है, वो याद रखना है. चलिए वाटर के बारे में. वाटर क्या है? वन ऑफ द रॉ मटेरियल है. वन ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वाटर. वन ऑफ द रॉ मटेरियल. Electron
प्रोटॉन सोर्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सोर्स है ये। Photosynthesis compulsory require electron and protons for the reduction of NADP plus, and those are received from water. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सोर्स है। तो सिमिलरली वाटर डेफिसिट एरियाज, जहां पे वाटर कम है, वाटर डेफिसिट एरियाज हैव लोअर फोटोसिंथेसिस रेट्स, लोअर फोटोसिंथेटिक रेट्स। जितना वाटर कम होगा फोटोसिंथेसिस भी कम होने वाला है। वन ऑफ द रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के बगैर कैसे होगा फोटोसिंथेसिस, नॉट पॉसिबल। तो इतना जो है हम याद रखे, फैक्टर्स में इतना याद रखेंगे। हियर फोटोसिंथेसिस चैप्टर कंप्लीट्स। नाउ आफ्टर फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का जो है ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लेना है हमारे को, बिकॉज इट इज ऑल्सो देयर इन एग्जाम। और हम ये प्लान करेंगे कल आपको जो है ज्यादा स्टडीज का टाइम मिले, सेल्फ स्टडी का। तो आई थिंक केमिस्ट्री इज ऑल्सो ओवर, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर टेस्ट। बायो भी आज कंप्लीट हो जाएगा और एक क्लास आफ्टरनून में होगी। शायद फिजिक्स के लिए एक क्लास रिक्वायर्ड है, वो कल मॉर्निंग हो जाएगी, अर्ली मॉर्निंग 8 to 9। उसके बाद जो है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ओके, एग्जाम संडे रहेगा, पता है ना? ग्रैंड टेस्ट शेड्यूल में क्या दिया है? संडे है ना? अभी याद नहीं है आपको एग्जाम कब है? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? व्हाट इज रेस्पिरेशन? Oxidation of food molecules to release energy. Oxidation of food molecules to release energy is called respiration. Food molecule का oxidation होगा, this is what respiration. Whatever food you are eating, that food is hydrolyzed, broken into simple glucose molecule, and those glucose molecule go to your cells. Inside your cells, glucose combined with oxygen and undergo oxidation, and after oxidation energy is released. ठीक है? और टाइप्स अगर मैं बात करूं, दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है देखिए, ग्लूकोज से शुरू होता, +6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज +6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन gives rise to 6 कार्बन डाइऑक्साइड +6 वाटर +38 एटीपी। पहले यहां पर ओल्ड एनसीईआरटी में 36 था, अब न्यू एनसीईआरटी में 38 आ गया है 2019 के एडिशन में, इसलिए हम 38 को फॉलो करेंगे। व्हाट इज एरोबिक? बोलने की जरूरत नहीं है। रेस्पिरेशन विच ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक। ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो एरोबिक। एग्जाम्पल फॉर एरोबिक, higher plants and animals। higher plants और animals में होने वाला है एरोबिक। और अगर मैं पूछूं एनाएरोबिक के बारे में, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ग्लूकोज से शुरू होगा, C6H12O6। देयर इज नो ऑक्सीजन हियर, directly break down into carbon dioxide plus ethanol plus 2 ATP। anaerobic respiration में just 2 ATPs are formed per glucose, so less ATPs compared to aerobic।
एनारोबिक में ये 2 एटीपी बनेंगे पर ग्लूकोस, मतलब 19 ग्लूकोज से 38 एटीपी बन सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि एक ग्लूकोज से ही 38 एटीपी बन जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ईस्ट है, ईस्ट इज डूइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। कोलेस्ट्रीडियम बोल के एक बैक्टीरिया है, दैट इज आल्सो डूइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। ईस्ट एंड कोलेस्ट्रीडियम, कौन सा भी रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, बोथ द रेस्पिरेशन बिगिंस विथ ग्लाइकोलाइसिस। Glycolysis step is common. Glycolysis step is common for both aerobic and anaerobic respiration. चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, सबके रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस ही होता है। लेट्स डिस्कस अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। कॉमन स्टेप है ये, कॉमन स्टेप for both aerobic and anaerobic। और यहां पर ग्लाइकोस का मतलब है, ग्लाइकोस का मतलब है ग्लूकोस, लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। ग्लूकोज हो या शुगर भी बोल सकते हैं, शुगर, कौन सी भी शुगर, नॉट नेसेसरी ओनली ग्लूकोस, इवन फ्रुक्टोस भी बोल सकते हैं। फ्रुक्टोस लाइसिस या ग्लूकोस लाइसिस या शुगर लाइसिस, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। वेर इट occurs in cytoplasm, टोटल 10 स्टेप्स, 10 स्टेप्स होते हैं। देखिए 10 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। नेट गेन ऑफ एटीपी, फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस 2 एटीपी, कितने, 2 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है। आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे बोलते हैं इसको, ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस का और एक नाम क्या दिया है, ईएमपी पाथवे। व्हाट इज ईएमपी? एम्बेडेन मेरोफ और क्या है, पारनास। नेम ऑफ द डिस्कवरर्स हैं, ये साइंटिस्ट हैं who discovered this glycolysis process। ठीक है। स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी, स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक ही स्टेप में नहीं रिलीज होती, स्टेप, छोटे छोटे स्टेप में एनर्जी आ रही है। स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। स्टार्ट्स विथ phosphorylation of glucose, starts with phosphorylation of glucose with the help of ATP and hexokinase enzyme। Hexokinase enzymes, ओके। मतलब ग्लाइकोलाइसिस, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज एंट्री लेगा and that glucose undergo which process? Phosphorylation। What is phosphorylation? Addition of phosphate group, phosphate group add होगा, उसको phosphorylation बोल रहे हैं हम। और hexokinase enzyme चाहिए।
सुक्रोज अगर ज्वाइन होना चाह रहा है ग्लाइकोलाइसिस, सुक्रोज ज्वाइन होना चाह रहा है, पहले तो सुक्रोज ब्रेक होना चाहिए, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोस बाय द एंजाइम इन्वर्टेस। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, सुक्रोज भी ज्वाइन कर सकता है ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लूकोज तो ज्वाइन करेगा ही, सुक्रोज भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन रूल है सुक्रोज पहले ब्रेक हो जाना, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। नाउ बोथ glucose and fructose can join glycolysis. Now both sucrose and fructose can join ग्लाइकोलाइसिस में, दोनों भी आ सकते हैं। तो होता क्या है ग्लाइकोलाइसिस में, सीक्वेंस क्या है ग्लाइकोलाइसिस का, लेट्स सी। ग्लाइकोलाइसिस में भी एनर्जी रिलीज होने वाली है, इवन एक कंबशन जो करते हैं आप, कंबशन कोई वुडन मटेरियल को बर्न करते हैं, पेपर को बर्न करते हैं, तो वहां पर भी एनर्जी रिलीज होती। और हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज भी बर्न हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पर भी एनर्जी रिलीज हो रही। देन व्हाट इज द डिफरेंस इन आवर सेल, ग्लूकोज अंडरगो फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस इन स्टेप वाइज, एनर्जी इज प्रोड्यूस इन स्टेप वाइज। जबकि मैं अगर एक पेपर को बर्न करके एनर्जी रिलीज करूंगा तो उसको मैं कंबशन बोलूंगा, और कंबशन में एनर्जी सिंगल स्टेप में रिलीज हो जाती है, एंड लॉट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट एज एंट्रोपी। ठीक है, एक पेपर को बर्न करे तो वो प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं, बहुत ज्यादा हीट लॉस हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाती है। सो इन आवर सेल ग्लूकोज आल्सो अंडरगो बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर स्मॉल स्टेप वाइज में देखेंगे कैसे। स्मॉल स्टेप वाइज में ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो रहा है, ग्लूकोज सबसे पहले ऊपर लिखूंगा मैं, ग्लूकोज जरा इधर इधर लिख देता हूं। आपके पास नोटबुक में एक पेज है ना, एक पेज पे लिखिए पूरा फ्रेश पेज। ग्लूकोज, first of all glucose undergo phosphorylation, as I told, glucose 6 phosphate. In glycolysis first what happens, glucose converted into glucose 6 phosphate. How many phosphate? Only one phosphate on 6th carbon. तो यहां पे एटीपी आएगा और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक जो फॉस्फेट निकलेगा ना, दैट फॉस्फेट इज एडेड टू ग्लूकोज ऑन 6th कार्बन, सो इट बिकम ग्लूकोज 6 phosphate. And this reaction occur in presence of which enzyme? Hexokinase. If you say statement, glycolysis initiated by hexokinase, अगर मैं बोलूं ग्लाइकोलाइसिस हेक्सोकाइनेज से स्टार्ट होता है तो बिल्कुल सही है। हेक्सोकाइनेज अगर नहीं आएगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, एंजाइम है वो। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। कुछ बच्चे फास्फोराइलेशन का मतलब क्या लेते हैं मालूम, एटीपी फॉर्मेशन। तो मैं उनको बता दूं, जहां पर अभी फास्फेट ऐड हो रहा है उसको फास्फोरिलेशन बोलते हैं, जहां पर भी फास्फेट ऐड हो रहा है। जैसे यहां पे एटीपी गिविंग फास्फेट टू ग्लूकोज ऑन 6th कार्बन, so phosphate is added on 6th carbon, so that's why it is called phosphorylation of glucose. Then glucose 6 phosphate converted into its isomer fructose 6 phosphate, then fructose 6 phosphate converted into fructose
1,6 डाइफॉस्फेट। पहले से एक फॉस्फेट था ही, कौन से कार्बन पे था? 6th कार्बन पे था, और एक फॉस्फेट ऐड होगा 1st कार्बन पे, कितने हो गए? डाइफॉस्फेट ना। अब एक और एटीपी यूज हो जाएगा, और एक एटीपी यूज हो रहा है। मैं लिखा है यहां, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस? 2 एटीपी। अब तक कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए? एटीपी प्रोड्यूस नहीं हुए, अब तक यूज हुए -2 एटीपी चल रहे हैं हम। अब समझ गए? एक एटीपी यहां पे यूज हो गया, एक एटीपी यहां पर यूज हो गया। अभी तक तो बना नहीं एटीपी कुछ भी। अब क्या होगा नेक्स्ट? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ब्रेक डाउन इनटू 2 ट्रायोसिस। 2 ट्रायोसिस बोल तो 3 कार्बन शुगर्स, 3 कार्बन वाले शुगर्स बनेंगे, क्योंकि फ्रुक्टोज में 6 कार्बन है तो 3 तो एक का नाम है ग्लीजराल्डिहाइड 3 फास्फेट, एक का नाम, या ब्रैकेट में PgAl, फास्फो ग्लीजराल्डिहाइड बोलो या ग्लीजराल्डिहाइड 3 फास्फेट बोलो, वही होता। ग्लीजराल्डिहाइड 3 फास्फेट बोलो या फास्फो, कौन से कार्बन पे फास्फेट? 3rd कार्बन पे चले गए। कितने फास्फेट थे? 2 फास्फेट थे ना फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, डाई में से एक दे दिए हम PgAl को, और एक फास्फेट बचा, वो दे देंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को DHAP बोलेंगे इसको, DHAP। इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन। इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन। और दोनों के बीच में लगा दो रिवर्सिबल साइन, दोनों के बीच में लगा दो रिवर्सिबल साइन। कितने स्टेप्स हो गए अब तक? 1 2 3 4। 4th स्टेप इज स्प्लिटिंग, 5th स्टेप इज रिवर्सिबल साइन। टोटल 10 बोलूं मैं, 5 स्टेप्स हो गए। Here every reaction is catalyzed reaction. Every reaction is catalyzed reaction. No reaction is uncatalyzed reaction in living system. हर एक स्टेप के लिए एंजाइम चाहिए। यहां पर 2nd स्टेप को एंजाइम चाहिए, 3rd स्टेप को एंजाइम चाहिए, 4th को चाहिए, 5th को चाहिए, हर एक स्टेप को एंजाइम चाहिए। ऐसा रिएक्शन ही नहीं है लिविंग सिस्टम में जो एंजाइम के बगैर होता है। एंजाइम कंपलसरी है, लेकिन वो सारे एंजाइम आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। समझे? हेक्सोकाइनेज पढ़ लेना, ये एक एंजाइम बस। और ये याद रखना कि हर स्टेप के लिए एंजाइम चाहिए। बायोमॉलिक्यूल डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, है ना? वेस्ट नहीं होना आपका टाइम, है ना? जो पढ़ना है वो पढ़ना। अच्छा दिखता है ना, यहाँ पे एक रेड पेन से यहाँ एक एंजाइम लिखूं, यहाँ पर एक एंजाइम, यहाँ पर एक एंजाइम। आई कैन राइट ऑल दोस थिंग्स एंड कंफ्यूज यू। मेरी आदत नहीं है, मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं। और जो पढ़ना है वो पढ़ना, वो इस नहीं पढ़ रहे जो पढ़ना है, और क्या बाकी का पढ़ते, समझे? और बच्चों को भी अच्छा लगता है, कुछ तो कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, बाहर का पढ़ा रहे हैं ना कुछ तो। यस, दिस इज द नीड पॉइंट इफ आई एम गोइंग आउट ऑफ सिलेबस। ये चल रहा है आज के टाइम में, लेकिन एग्जाम पेपर जिस दिन हाथ में आता ना, जो एनसीईआरटी पढ़ा हुआ रहता ना, उसको मालूम होता, अरे काश में एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ लेता। तो ये क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं होता, ये क्वेश्चन का आंसर है बुक में, सबको मालूम रहता। ऐसा नहीं होना आपके साथ।
समझे? 360 चाहिए मुझे बस सारे स्टूडेंट से, 360 सबकन से, राइट? और जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है सब पढ़ेंगे भाई, एमबीबीएस में जाने के बाद कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इंडिया की एक भी बुक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ फॉरेन ऑथर्स की पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट also called PGAL receive 1 phosphate from cytoplasm, inorganic phosphate, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक साइटोप्लाज्म से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है ना, एक फॉस्फेट लेगा, कहां से? साइटोप्लाज्म से लेगा, वो साइटोप्लाज्म से ले लेगा और बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोल सकते हैं, बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आप जरा गौर से देखना, मैं बोल रहा था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन जाएगा 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अल्डिहाइड कहां गया पूछो, है ना? अल्डिहाइड था वो, अल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड कैसे बन गया? सो यहां पे क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है। दिस इज द क्वेश्चन दे कैन आस्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NAD आके, यानी D+ आके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के हाइड्रोजन छीन लेता है, तो ये NAD क्या बन जाता है? यानी DH2। केयरफुल, आई एम राइटिंग NaDH2, आई एम नॉट राइटिंग NADPH2, NaDH2 लिख रहा हूं मैं। व्हाट इज NAD? NAD इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, NAD इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हाइड्रोजन छीन लेगा। Who is receiving proton and electron in glycolysis? बोले तो क्या है आंसर? NAD+. Which compound is oxidized in glycolysis? कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ जी? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के हाइड्रोजन लॉस हुए ना, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन हुआ ना, ठीक है। अब ये रिएक्शन कितने बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए, एक बार ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के साथ और एक बार डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ भी होगा इधर, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि सेम रिएक्शन अगर 2 बार हो रहा है तो क्यों लिखूं मैं? तो यहां पे लिख देता हूं मैं 2x। क्या लिख देता हूं? 2x। बुक में भी 2x लिखा हो रहा था, देखिए 2x। चलो 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ले लो, इधर से ले लिए, आपकी नोटबुक में कंटिन्यू करो। 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के नीचे लिखो, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के नीचे लिखो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आप बोलेंगे 1,3 था, 1,3 बाई था, अब ये 3 कैसा हो गया? ये एक फॉस्फेट निकल गया और ADP बिकम्स, ये कितने ATP दिख रहे हैं आपको? मुझे तो दो दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं 2, मैं लिखूंगा 1 लेकिन दिखेंगे 2, क्योंकि 2 टाइम्स बोल के लिखे ना, वही आप ये रिएक्शन 2 बार हो रहा है। लिखूंगा 1 ही बार, लेकिन समझूंगा क्योंकि 2 टाइम्स आप ही बोले ना, 2x बोल दो 2 टाइम्स, मतलब ये रिएक्शन 2 टाइम्स हुआ, मतलब एक बार ATP एक बना और एक बार एक ATP और एक बार बना, फिर ये भी 2 टाइम्स। अब रीअरेंजमेंट करेंगे रिएक्शन, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फेट निकाल के सेकंड कार्बन पे लो, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड,
2-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid। यहां पे कुछ भी एटीपी ओटीपी नहीं बनेगा। थर्ड फास्फेट, जो थर्ड कार्बन पे फास्फेट था वो सेकेंड कार्बन पे आया है। ये रिएक्शन भी 2x 2 टाइम्स होगा। और ये 2-phosphoglyceric acid कन्वर्टेड इनटू फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, यहां पे वाटर लॉस होता है। ड्यूरिंग विच रिएक्शन वाटर इज लॉस्ट इन ग्लाइकोलाइसिस, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। विच कंपाउंड या विच इन विच रिएक्शन वाटर इज लॉस्ट, 2-phosphoglyceric एसिड से फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, या विच कंपाउंड अंडरगो ऑक्सीडेशन। अब देखो एग्जामिनर के पास ऐसा तो क्वेश्चन नहीं है राइट द ग्लाइकोलाइसिस बोल के, नीट एग्जाम में वो पूछना है, क्वेश्चन बना के पूछना है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना बीच बीच में से। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate अंडरगो ऑक्सीडेशन, 3-phosphoglyceric एसिड अंडरगो रीअरेंजमेंट, है ना, थर्ड से सेकंड कार्बन पे जाएगा ना फॉस्फेट, एंड 2-phosphoglyceric एसिड वाटर इज लॉस्ट, एंड फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड से फाइनली पायरुविक एसिड बनेगा। तो फास्फो से पायरुविक एसिड कैसे बनेगा? यहां पर भी एक एडीपी आएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी बिकम एटीपी, फास्फेट इज रिमूव्ड। कितने पायरुवेट बनेंगे लास्ट में? 2 टाइम्स। ये भी फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड 2 टाइम्स। वाटर लॉस 2 टाइम्स। वाटर लॉस कितने बार हुआ? 2 टाइम्स। आपको दिख रहा है एक बार, दिख रहा है एक बार, लेकिन समझेंगे 2 बार। वाटर लॉस 2 टाइम्स। कितनी एटीपी बने टोटल? 4 एटीपी बने। देखो यहां पर 2 एटीपी, यहां पर 2 एटीपी, 4 एटीपी बने। लेकिन मैं क्या लिखा है आपको? नेट गेन सिर्फ 2 एटीपी लिखा है, क्योंकि 2 एटीपी माइनस थे हमारे, तो नेट गेन 2 एटीपी। लेकिन कुछ बच्चे, होशियार बच्चे ये भी बोलेंगे यानी DS2 भी एटीपी है ना सर, 1 NaDH2 इज इक्वल टू 3 एटीपी, 1 NaDH2 इज इक्वल टू 3 एटीपी, है ना। 1 NaDH2 बिल्कुल, 1 NaDH2 इज इक्वल टू 3 एटीपी आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद, आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद, आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद। समझ गए? सपोज आपके है ना फादर आपको पॉकेट मनी दिए, एक 200 रुपीज दिए और एक 6000 का एक चेक दे दिए। तो अब मैं पूछा आपके पास अब कितना कैश है, बोल तो क्या बोलेंगे आप? दोनों मिला के 8000 बोलेंगे क्या? वो चेक की कोई वैल्यू नहीं है ना। वो चेक जो है जाना पड़ेगा बैंक में, सबमिट होना पड़ेगा। और ये ETS का भी वैसे ही है। ETS बोलते बैंक है ये, वो NaDH2 जाना पड़ेगा, वो बैंक में जाना, वो कन्वर्ट होना एटीपी, बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, ग्लाइकोलाइसिस से कितने एटीपी बने? 2 ही एटीपी। 8 एटीपी क्यों लेते हैं आप? अब पूछूंगा मैं वो क्वेश्चन बना के, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसा पूछे तो देखेंगे। 8 एटीपी, लेकिन पूछा नहीं मैं, नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस जस्ट 2 एटीपी। ठीक है, तो यहां पे ये सारे चीजें याद होना है। स्टेप्स पूरे ये 10 स्टेप्स हैं, याद रखना है। इसको जरा देखो, यहां शॉर्ट में कर लेंगे हम। ये PgAl या DHAP 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को मैं 1,3 BPGA लिख सकता हूं। 1,3 BPGA, इसको मैं लिख देता हूं 3PGA, इसको लिख देता हूं 2PGA, इसको लिख देता हूं मैं PEP, फास्फेनॉल पायरुवेट। यस, दीज आर स्टैंडर्ड एब्रिवेटेड फॉर्म्स। एग्जाम में पेपिज बोलता हूं ना।
और ये पायरेविक एसिड PA। तो ये सीक्वेंस याद होना आपको, पहले सीक्वेंस याद करेंगे। सीक्वेंस ऐसा याद रखेंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज, ढप से गिरा पागल, ढप से गिरा पागल, 1 3 बाई पेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पेप्पा। ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज, ढप से गिरा पागल, 1 3 बाई पेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पेप्पा। एक याद रखो। नेक्स्ट याद रखो, और ये तो याद रखना पड़ेगा कौन से स्टेप में एटीपी बन रहा है, कहां पे एटीपी यूज हो रहा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ज्यादा यही फोकस करेंगे, एटीपी कहां बन रहा, NADH2 कहां बन रहा, वाटर कहां पे लॉस हो रहा, यूज कहां हो रहे एटीपी, ये पूछने वाले। ठीक है, क्लियर है ये पूरा? चलो, हाँ लिखना है। ओके, अब यहां पर ये याद रखो, PgAl अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, PgAl अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, और NAD plus is oxidizing agent. Oxidizing agent. Can glycolysis occur without NAD plus? सब दे देंगे, NAD plus नहीं देंगे, चलेगा क्या ग्लाइकोलाइसिस? नहीं चलेगा ना, NAD plus आना है कंपलसरी। NAD plus receive proton electron, receive proton electron from पागल PgAl फास्फोग्लिसराल्डिहाइड से। डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलो, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कौन सा है? 2PgA converted into PEP, 2PgA converted into PEP, this is dehydration reaction। 2D, हाँ, 2PgA converted into PEP। और क्या है, और क्या पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन यहां पर? डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन, डायरेक्ट एटीपी और जीटीपी फॉर्मेशन, कहीं पर भी एटीपी या जीटीपी का डायरेक्ट फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, फॉर डायरेक्ट एटीपी और जीटीपी फॉर्मेशन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। कहीं पर भी डायरेक्ट एटीपी दिख रहा है आपको या जीटीपी दिख रहा है तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। मतलब all these compounds, glucose, glucose 6-phosphate, they are all organic compound, they are having carbon skeletons, right? These intermediates, ग्लूकोज के बाद क्या आना? ग्लूकोज 6-phosphate आना, उसके बाद क्या आना? फ्रक्टोज 6, उसके बाद क्या आना? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट आना। ऐसा स्ट्रिक्ट रूल है क्या? ऐसा स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है, स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है, और यह रूल कभी कभी ब्रेक भी हो सकता है। समझ गए? रूल ब्रेक भी हो सकता है। इंटरमीडिएट्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस और इंटरमीडिएट्स ऑफ द रेस्पिरेशन can be used for the biosynthesis of
several other biomolecules, इंटरमीडिएट्स, बीच बीच में जो इंटरमीडिएट आ रहे हैं ना, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, पीजीएल, कुछ भी आ रहा है ना, ये इनको इंटरमीडिएट बोलूंगा मैं। इंटरमीडिएट्स ऑफ रेस्पिरेशन हैविंग कार्बन स्केलेटन, क्या है इनके पास, क्या है, कार्बन स्केलेटन है उनके पास। हैविंग कार्बन स्केलेटन, having carbon skeleton used for the biosynthesis, can be used for the biosynthesis of several other biomolecule. Several other biomolecules, मतलब ऐसा रूल बनाया गया कि ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट आना, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट आना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पीजीएल जो है उसकी इमरजेंसी आ जाती है हमारे सेल में, पीजीएल समवेयर इट इज रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पीजीएल, तो इमीडिएटली पीजीएल है ना ग्लाइकोलाइसिस छोड़कर चला जाता है, चला जाता है कहीं और प्रोसेस में यूज हो जाता हो। तो इसलिए मैं लिखा इंटरमीडिएट्स ऑफ respiration having carbon skeleton used for the biosynthesis of several other biomolecule. Sometime, यह हमेशा के लिए रूल नहीं है, ये रूल क्या है, ग्लाइकोलाइसिस चलना है, 2 एटीपी तैयार होना, 4 एटीपी बनेंगे, उसमें से 2 एटीपी यूज हो जाएंगे, तो नेट गेन होता है 2 एटीपी का, है ना, करेक्ट है। तो इंटरमीडिएट्स ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस तक आप अच्छे से रिवाइज कर लो, आफ्टरनून में लैकोपेरॉन पढ़ेंगे हम। थैंक यू।